Hello students, a very good evening to all of you. I hope you are all fine. After a long time I am here to make a video for you. So before starting today's topic, first of all, a very happy Holi to all of you. So in today's class, we will read a new theory, that is trauma theory. Recently I have read a very good theory book on this particular topic, and I found this topic very interesting. So I thought of making a video on that. So today we will read trauma theory. It is easy to learn theory series. So before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NDA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 3 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. As you all know that currently I am not able to take live classes because I stay away from home. Due to my job. So I have come home during this weekend on the occasion of Holi, and I thought of making a video for you. So let's learn about trauma theory. So first of all, what is trauma? The word trauma is very common to all of you, especially in today's world where each of us are a kind of victim. Each of us is a kind of victim of some kind of mental depression. तो ट्रॉमा इज नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन, बट अगर ट्रॉमा को हम डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इट मीन्स अ वुंड और एक्सटर्नल बॉडी इंजुरी. If we talk about dictionary meaning earlier, trauma refers to only some kind of external bodily injury which is very severe. And later the idea of trauma was discussed a lot. Mainly it was limited to medical area in the earlier days. तो उसके बाद क्या है कि ट्रॉमा का जो ओरिजिनल डेफिनेशन था, इट ओनली रेफर्स टू द एक्सटर्नल बॉडीली इंजुरी. बट ट्रॉमा इज नॉट ओनली द बॉडीली इंजुरी. A very popular journal, Popular Science Monthly, this is the name of the journal, Popular Science Monthly, it defines that no, trauma doesn't only mean external bodily injury, but it also refers to some kind of mental condition, mental breakdown or nervous breakdown, a morbid nervous condition. People become nervous often, but when that nervousness reaches to its extreme point, that can cause trauma. So that particular definition was given by this particular journal, Popular Science Monthly. अब ट्रॉमा के बारे में स्टडी स्टार्ट हुआ था बहुत दिन बाद. ठीक है, ट्रॉमा एज अ वर्ड बस एग्जिस्ट करता था, बट द मेडिकल टर्म लाइक ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस और नर्वस शॉक, these terms were coined in 1860s. आप समझ रहे हो, बहुत दिन बाद ये कॉइन हुआ था. 1860s के आसपास ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस नाम का एक डिजीज आइडेंटिफाई किया गया डॉक्टर्स के द्वारा कि that particular disease indicates some kind of mental breakdown where the patients suffer due to some particular haunted memory. So that was about the disease. Now iron hacking calls it diseases of memory. This is the very important thing. Iron hacking calls it diseases of memory. मेमोरी का ये डिजीज है. नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बॉडीली इंजुरी, बट इट इज मोर मेंटल. हाँ, बॉडीली इंजुरी इसका एक पार्ट हो सकता है, बट मेनली इट रेफर्स टू सम काइंड ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन. सो माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रॉमा. अब बात आती है कि ट्रॉमा स्टडीज के बारे में. So trauma studies, if we talk about in the field of literature,
Then it started in 1990s based on Freud and Brewer's ideology. Okay, Freud and Brewer, these two names are very important. So Freud, you all know, famous for psychoanalysis. And remember, when we read Freud, we have discussed a particular method, that is talking cure method. बेसिकली फ्रॉइड तो एक साइकियाट्रिस्ट थे, ये तो आप सबको पता है. तो फ्रॉइड एज अ डॉक्टर वो जब पेशेंट को ट्रीट करते थे तो उन्होंने ये चीज देखा कि टॉकिंग क्योर मेथड बहुत काम आते हैं व्हेन इट टॉक्स अबाउट दिस ट्रॉमा. अब ट्रॉमा क्यों होता है? You all know that if we talk about simple terms, except theoretical definition, trauma refers to a particular incident. जिस इंसिडेंट के कारण कोई भी पेशेंट मतलब कोई भी पर्सन के अंदर एक डर हो जाता, एंड व्हेन दैट fear becomes very severe or very deep rooted, then it results into trauma. Right? So trauma and fear, these two are two different things. Fear तो normally हम सबको होता है, बट जिसको मान लो ट्रॉमा है, वो एक अलग टाइप का फियर है जो कि उसके मन से दूर करना बहुत मुश्किल है ना. तो ट्रॉमा इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट. कभी ये भी होते हैं कि घर में मतलब बहुत ही नियर एंड डियर वंस किसी का अगर डेथ हो जाए तो कोई ट्रॉमा में आ जाए. तो द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट gives such an impact on his or her mind, on that particular person's mind, that it results into trauma. तो वो abnormally behave करते हैं, कभी वो बहुत चुप हो जाते हैं, कभी वो insane हो जाते हैं. तो madness is also a consequence of trauma. जो पर्सन बहुत ही ट्रॉमेटिक होते हैं उनका मैडनेस, मैड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. तो अब ये टॉकिंग केयर मेथड में फ्रॉइड ने क्या बोला था कि दिस पर्टिकुलर ट्रॉमेटिक पेशेंट्स, बेसिकली ट्रॉमा इसीलिए होता है कि दे कैन नॉट शेयर देयर इंसिडेंट विथ एनीवन. जो भी चीज के लेकर बेसिकली फ्रॉइड के थ्योरी का तो एक ही मूल मतलब आधार था, दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स. So Freud mentions that sexual trauma can also be there. For example, any girl who was raped at a very young age. तो बहुत मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी उसके मन में ये डर रहता है, जब भी वो कोई जगह में जाते हैं उसको ये एक ट्रॉमाटाइज्ड फीलिंग आती है. So trauma can also result from that. Now that particular incident, maybe the girl cannot share with anyone. So in that case, this talking cure method is very सिग्निफिकेंट. तो फ्रॉइड ने क्या बताया था कि जब ट्रॉमेटिक पेशेंट को एक मतलब प्लेटफॉर्म देना चाहिए उसके अपने ट्रॉमा के बारे में डिस्कस करने की. So the doctor will be there and the doctor should gain the confidence of the patient that you can share it with me freely. I will not tell anyone, and it is a kind of comfort zone. You just tell. जो भी दिमाग में आ रहे तुम बस बोलते जाओ. Whether there is any logic or not, that's a different thing. But you should talk. अब टॉक बार बार बात करने से क्या होता है कि वो चीज का जो भी उसके मन में एक प्रेशर था वो लूज हो जाता, ऑटोमेटिकली ट्रॉमा क्योर होने के चांसेस बढ़ जाते. तो फ्रॉइड ने ये मेथड अप्लाई किया था, टॉकिंग क्योर मेथड का. नाउ फ्रॉम दैट मेडिकल मेथड इट कम्स टू लिटरेचर एज ट्रॉमा स्टडीज. स्पेसिफिकली ट्रॉमा स्टडीज के बारे में बात शुरू हुई जब दो वर्ल्ड वॉर हम पार किए. वर्ल्ड वॉर पार करने के बाद मैक्सिमम पीपल वर ट्रॉमाटाइज्ड सीइंग दैट वायलेंस. एंड आल्सो मॉडर्न एज में 1990s आप समझ रहे हो, इट इज द मॉडर्न एज. मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न टाइम में ट्रॉमा के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. तो एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस. फ्रॉइड ने इसको एज अ मेडिकल थ्योरी डिस्कवर किया था, टॉकिंग क्योर मेथड को. But from that method, it results into literary theory, trauma studies, trauma theory. तो और भी कई सारे थ्योरिस्ट थे, बस नाम थोड़ा सा जानना है. जीन मार्टिन चारकोट, हरमन ओपेनहाइम, अब्राहम कार्डिनर, they are the other theorists who worked on trauma studies. Now, trauma studies basically it is a kind of multidisciplinary field. It includes many areas focusing on psychological, philosophical, ethical, and aesthetic questions about the representation of traumatic events. So the representation is the most important thing.
how the traumatic events are represented. So this is the most important part because trauma हो सकता है कि same incident, मान लो कोई भी एक accident का scene, so 5 different people saw the accident, right? But everyone would not be traumatized. Only one or two person could be traumatized from that. अब चीज तो सब सेम देखा है, तो किसी दो को ट्रॉमा आ रहे बाकी को क्यों नहीं आ रहे? तो इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल कंस्ट्रक्शन, योर माइंड सेटअप. If you think or if you over imagine a particular incident, then it can result into trauma. Or maybe if you are too much emotional, too much attached with that particular incident, then also it can result into trauma. तो ये वैरी करता है, मतलब पीपल के माइंडसेट के अकॉर्डिंग ट्रॉमा का डिफरेंट टाइप्स होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स and also the psychological, philosophical, ethical and aesthetic question whether it is justified or not, whether it is a kind of um, horrible incident or not, whether it results into some illegal uh, activities. मान लो किसी एक पर्सन ट्रॉमाटाइज्ड है तो वो ट्रॉमा के कारण वो मर्डर कर रहे है ना, उसके अंदर अंदर एक इंसैनिटी आ गया तो वो डिफरेंट पीपल को मर्डर कर रहा है एंड ही फील्स satisfied out of it. So that results into some kind of illegal cases. तो ट्रॉमा का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है. सो दैट इज व्हाई इट encompasses many fields, multidisciplinary एक स्टडी. अच्छा, अब आते हैं कि लिटरेचर में इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक बिगिनिंग ऑफ ट्रॉमा स्टडीज, देन दिस पर्टिकुलर वर्क, इसको जरूर याद रखना. आप मान सकते हो कि द ऑफिशियल beginning of trauma studies in English literature, it began with Kathy Caruth's work Unclaimed Experience, Trauma, Narrative and History. तो इस बुक से ये स्टार्ट हुआ. So the title is very interesting, na? Trauma, narrative and history. Obviously, trauma can also be connected with history. If we talk about the two world wars, then also इसके साथ आप trauma का connection definitely draw कर सकते हो. The title is very interesting and it is unclaimed experience. Note it down very carefully. Unclaimed experience. So something which cannot be shared with anyone. एक चीज आप सबने सुने होंगे कि ये बताए जाते हैं कि if you are sad, speak out. Don't take it into your mind and suppress it. If you are sad, then you cry out, you share your incident, your sad incident with your near and dear ones, but don't suppress it. Why is it said? Because this suppression, if it continues for a longer time, then it can result into trauma. आपके मन में दुख हुआ, आप बता दिए, आप रो दिए, ट्रॉमा नहीं आएगा. लेकिन अगर आप उस चीज को मन में रख देते हो, किसी को नहीं बता पाते हो, देन इट मे रिजल्ट इनटू ट्रॉमा. इफ योर माइंडसेट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इट मे रिजल्ट इनटू ट्रॉमा. अब ये कुछ घोस्ट के कारण भी हो सकता है, कोई बॉडीली इंजुरी के कारण हो सकता है, कोई एक्सीडेंट के लिए हो सकता है, कोई नियर एंड डियर वंस के डेथ से हो सकता है, कोई भी चीज में ये पॉसिबल. बट स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई फ्रॉइड टॉक्ड अबाउट दिस टॉकिंग क्योर मेथड. देखो आज भी हम अपनी जिंदगी में इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं. आप ये सुने होंगे बहुत बार कि जब भी किसी का डेथ हो जाते हैं, मान लो कोई एक पर्सन वो एकदम चुपचाप हो गया, वो नहीं रो रहा, तो सब लोग मिलके उसको इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रोना स्टार्ट करे. नाउ व्हाई क्राइंग इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट कैन, you may say it can blow out your sorrow. जो आपके मन में दबा हुआ है उसको रिलीज कर देगा, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर. but you if you cannot cry, if you cannot tell, if you isolate yourself from the surrounding, then वो मन के अंदर अंदर रहते हुए वो एक टाइम से जब burst out करेगा, then it may result into insanity, it may result into tremendous criminal desire. साइको पेशेंट आप बन सकते हो, कुछ भी चीजें हो सकती. So that is why unclaimed experience, Kathy Caruth has given the title Unclaimed Experience, Trauma, Narrative and History. Some experience that is unclaimed, unheard, unsaid, it results into trauma. तो अब देखो मैडनेस एंड हिस्टीरिया
These are also part of trauma. Obviously, I have just mentioned that madness can be a result of trauma or a consequence of trauma. तो अब बात है कि ट्रॉमा मतलब हम बताते हैं कि एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट, कोई भी एक चीज देख के कोई एक पर्सन ट्रोमाटाइज्ड हो गया। नाउ इज दैट इंसिडेंट ट्रॉमेटिक? नो। I have just given you the example of an accident, a very horrible accident. Five friends, they together saw that accident, but one of them was traumatized due to that. Other four friends have forgotten. Now, why is this happening? Because the event is not traumatic. Accident is a very normal thing. कोई एक्सीडेंट देखता है, भूल जाते हैं, और किसी के मन में वो चीज बैठ जाती है, वो ट्रॉमा क्रिएट कर। So Freud and Brewer mentioned that any event or no event can be traumatic. The event itself is not traumatic. So trauma कहाँ से बनते हैं? The memory. This is the most important part. The memory of trauma that forms. Incident traumatic नहीं होता। तो memory मतलब incident आपने देखा, वो आपके माइंड में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, how it gets stored into your mind, that can create trauma। ठीक है। मे बी मान लो किसी पर्सन ने कोई अच्छा एक्सीडेंट छोड़ो, एक दूसरे एग्जांपल देके, फायर। ये ट्रॉमा बहुत पीपल का होता है कि मान लो एक छोटे उम्र में, मतलब व्हेन ही और शी वाज अ चाइल्ड, वो आग में जल गया। ठीक है। तो उसके बाद वो बहुत बड़े हो गए, अब अभी भी जब भी वो कहीं पे आग देखता है, उसको उसके मन में वो डर आता है। अब बर्निंग बहुत पीपल होते हैं, ऐसा ये बहुत नॉर्मल चीज है। छोटे मोटे टाइम में हम लोग थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाते हैं। मान लो आप पटाखा फोड़ने जा रहे हो, तो आप आग से थोड़ा आपका हाथ बर्न हो गया या कुछ भी हो गया, तो ऑल पीपल आर नॉट ट्रॉमाटाइज्ड ड्यू टू दैट। कोई कोई भूल जाते हैं, कोई कोई उसको चैलेंज के हिसाब से ले लेते हैं कि चलो ठीक है, एक बार हो गया, दूसरे बार कोशिश, ये भी होता है। बट some people become so nervous that they cannot even go near the fire। मतलब नॉर्मल फायर, मान लो किसी जगह में पूजा हो रहा है, तो फायर जैसे होता है होम कुंड में, जैसे हम आग जलाते हैं, तो उसको देख के भी वो डर जाते हैं कि भाई ये आग, तो दैट रिजल्ट्स इनटू ट्रॉमा। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? इट इज द memory of trauma that comes. Whenever you see the fire, you recall your burning. Maybe that was not so severe, very normal thing, you are completely cured, बट जब भी आप आग देखते हो तो आपको वो चीज याद आ जाते हैं, एंड वो यादें आपको ट्रॉमाटाइज कर, नॉट द इंसिडेंट, है ना। तो वेरी ब्यूटीफुली फ्रॉइड एंड ब्रूअर मेंशन दैट नो इवेंट इज ट्रॉमेटिक, बट द मेमोरी ऑफ ट्रॉमा दैट, नाउ मेमोरी वैरीज, मेमोरी और द कैपेसिटी टू स्टोर थिंग्स, इट वैरीज, है ना। कोई भी इंसिडेंट मान लो जो मेरे याद में है, वो दूसरों की याद में नहीं हो सकता। तो हम जो चीजें आसानी से नहीं भूल पा रहे हैं, वो भी वही मेरे लिए ट्रॉमा क्रिएट। और जो चीज हम भूल जाते हैं, मान लो जो आदमी भूल जाते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, तो ठीक है, एक बार जल गया था तो क्या बात है, दूसरी बार थोड़ी किया हो। वो उससे मतलब एक लेसन ले रहे कि ओके, एट फर्स्ट आई वाज बर्न, आई वाज अ चाइल्ड देन, बट नाउ आई विल रिमेन एवर। एक सावधानी हम बनाने के, बस सावधानी की बात ये नहीं है कि आप ट्रॉमाटाइज हो जाओगे, भाई आग देख के आप सेंसलेस हो गए हो, ऐसा नहीं। तो मेमोरी ऑफ ट्रॉमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट फॉर्म्स द पीपल। दिस इज अ बेसिक पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ट्रॉमा का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एंड ब्रूअर। फ्रॉइड का एक बुक था, स्टडीज ऑन हिस्टेरिया, स्टडीज ऑन हिस्टेरिया। तो दिस पर्टिकुलर बुक में फ्रॉइड ने ये मेंशन किया है कि अ पर्टिकुलर इंसिडेंट enters so deeply into the mind that it cannot be assessed through normal mental process। What does it mean? That any particular incident, very normal incident maybe, it enters so deeply into your mind that it cannot be assessed through normal mental process, which means normal logical explanation।
ठीक है, मान लो एक बहुत छोटा चीज है, उससे आप डर गए, तो अब लोग आपको समझा रहे हैं कि भाई इससे डरने की क्या बात है, अभी तुम बड़े हो गए हो, अभी ये नहीं होगा, तो चलो जाते हैं। बट यू फील ट्रॉमाटाइज्ड, व्हाई? बिकॉज योर माइंड प्रोसेसेस इट नॉट एज अ नॉर्मल, बट वो एक बहुत ही हॉरिबल तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। एंड ईट ईगो सुपर ईगो जो भी बोलो, ईट तुमको मतलब ईट बता रहे हैं कि भाई चलो कुछ नहीं होगा, एक बार पटाखा फोड़ने से हाथ जल गया तो दूसरी बार भी जलेगा, अभी चलो कुछ नहीं। बट आपके सुपर ईगो बता रहे हैं कि नो नो नो, डोंट गो, यू हैव दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, एक बार हो गया, दोबारा इसको रिपीट मत कर, है ना? तो योर नॉर्मल, नाउ देयर इज नो लॉजिक, there is no proper logic behind that, that when you when you were a child, you were burnt by the firecrackers, and now you are a grown up man, so अभी आप जल जाओगे, ये बात नहीं भी हो सकता है। बट फिर भी कोई भी नॉर्मल मेंटल लॉजिकल प्रोसेसिंग से वो आप एनालाइज नहीं कर पा रहे, दैट इज ट्रॉमा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाई आर यू ट्रॉमाटाइज्ड, तो इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं, दैट इज ट्रॉमा। इट इज स्टिल प्रेजेंट इन माइंड लाइक अ घोस्ट। इवेंट तो बहुत पहले हो चुका है, मतलब सालों साल पहले वो हो चुका है, खत्म हो चुका है, आधा जन भूल गए हो, बट यू कैन नॉट फॉरगेट, इट इज स्टिल प्रेजेंट इन योर माइंड लाइक अ घोस्ट। एंड अब देखो, ट्रॉमा हमेशा नहीं रहता है, ये बात भी है, सिचुएशन बेसिस पे आपके वो ट्रॉमा अराइज करे। कोई भी आपके एक्सीडेंट का ट्रॉमा है, आग में जलने की ट्रॉमा है, मान लो किसी नियर एंड डियर पर्सन का डेथ की ट्रॉमा है। अब वो ट्रॉमा आपको हमेशा नहीं आएगा, जब भी आप उसके बाद किसी की डेथ देखोगे, तभी आपको वो चीज फिर से आ जाए, है ना? तो इट इज प्रेजेंट इन माइंड लाइक अ घोस्ट, समटाइम्स इट अपीयर, then your logical explanation, logical brain stops working and you work in a different way, and sometimes it goes back। and मतलब आदमी पागल कब हो जाते हैं, जब ये ट्रॉमा कंटिन्यू रहते, मतलब इंसिडेंट नहीं है, ये भी एक टाइप का ट्रॉमा है, सोचो, जिसको हम कहते हैं क्या, स्किज़ोफ्रेनिया। You may be aware of the term, so schizophrenia is a particular disease in which people, or the man or woman who is affected with that, he can visualize the thing that is not present। वो आपके सामने नहीं है, लेकिन आप वो इमेजिन कर रहे हो, एंड वो बहुत अजीब अजीब चीजें हो। मान लो आप आपके सामने देख रहे हो कि कोई मरा हुआ आदमी खड़ा है। नाउ द नॉर्मल पीपल विल गेट स्केयर्ड दैट ओ माय गॉड, व्हाट इज ही सेइंग, दैट द डेड मैन ही इज टॉकिंग। बट बात ये है कि उसके दिमाग के अकॉर्डिंग, जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, उसके दिमाग के अकॉर्डिंग लग रहा है कि भाई ये तो नॉर्मल है, हम तो उसको देख पा रहे हैं, है ना? हम उसको देख पा रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है भाई कोई तो नहीं है। तो वो बहुत अजीब अजीब चीजें देखते हैं जो वास्तविक में पॉसिबल नहीं है। दिस कैन ऑल्सो बी अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। And if you clearly analyze those incidents, then you can somehow connect it with his or her past life। हो सकता है कि एकदम बचपन में वो कोई चीज उसके साथ हुई हो, उसी को वो और बढ़ा चढ़ा के अभी देख रहे हैं, ठीक है? तो वही चीज है, मतलब उसका सबसे फेवरेट, मान लो कोई डॉल था, ठीक है, जो सबसे फेवरेट उसके खिलौना था, उसी को वो आज देख रहे हैं कि वो उसके अंदर जान आ गए, वो वापस आ गए, एंड वो हमारे साथ खेल रहा। अब इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, हाउ कैन अ डॉल बी अलाइव, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये वो इमेजिन कर रहे। सिजोफ्रेनिया कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर इमेजिनेशन, एंड इट मे बी कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। थोड़ा कुछ कनेक्शन हो भी सकता है, मतलब जो बात वो बता रहे हैं, अगर हम लॉजिकली सुने, तो हो सकता है कि कोई उसके साथ कनेक्शन हो, एंड अपैरेंटली इट अपीयर्स टू बी लॉजिकल। तो दैट इज एक्चुअली ट्रॉमा। सिजोफ्रेनिया इज अ पार्ट ऑफ ट्रॉमा। हम बस एग्जांपल दे रहे हैं कि इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द माइंड, वही चीज। देखो, अब स्टडीज ऑन हिस्टेरिया में फ्रॉइड ये बता रहे हैं कि हिस्टेरिक, जो हिस्टेरिक पेशेंट होते हैं, दे सफर मेनली फ्रॉम रेमिनिसेंसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hysteric patient, they suffer mainly from reminiscences, matlab fragments of memory। The whole incident could
The whole incident cannot be recalled by you, but you can recall a few fragments, and you are assembling those fragments and you are creating a new story which has no logical base, है ना? तो दैट इज हिस्टेरिया, दैट इज मैडनेस, दैट इज ट्रॉमा. ट्रॉमेटिक पेशेंट के अंदर यही चीज होता है कि जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, आप बहुत ही छोटे मोटे कनेक्शन को लेके एक स्टोरी बना रहे. जैसे फ्रैंकेनस्टाइन ने बनाया था वो मॉन्स्टर, assembling different body parts from dead animals, and it results into a completely impossible, unimaginable, monstrous figure. So these particular incidents, the fragments of memory, the reminiscences of memory, it can it can be assembled together along with your own imagination, and it results into an impossible story. But for that hysteric patient, it appears to be very normal. But we people who are completely sane people, we feel horrified that what is he saying? There's no logical base. तो इसी से आपका मैडनेस डेवलप करता है. तो स्टडीज ऑन हिस्टेरिया में फ्रॉइड ये चीज बता रहे हैं, एंड फ्रॉइड हैज गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ शेल शॉक. You are all aware of shell shock. It was a particular disease noticed among the soldiers during the World War. तो जो ट्रेंच फाइट होता था, हम जब वॉर पोएट्री पढ़े थे तभी ये बताए थे कि जैसे मान लो विल्फ्रेड आवन, सिगफ्रीड ससून, दे ऑल सफर्ड फ्रॉम सेल शॉक. दिस इज आल्सो अ ट्रॉमा. ठीक है, तो वो उस टाइम में बहुत ज्यादा होता था बिकॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रेंच वॉरफेयर वाज अ वेरी पॉपुलर वॉर स्किल. ट्रेंच में सोल्जर बैठते थे एंड मतलब नीचे से वो लोग फाइट करते, माटी में वो लोग एक ट्रेंच खोदते थे, वहां पे बैठ के वो लोग फाइट करते थे. तो एक सीक्रेट चेम्बर काइंड ऑफ वो बन जाता, एंड बॉम्ब ब्लास्ट होता था उस ट्रेंच में. तो द साउंड ऑफ बॉम्बिंग, continuous sound of bombing, firing, seeing the deaths of near and dear ones, मतलब आपके सामने आपके दोस्त उसका मतलब बॉडी टुकड़े टुकड़े हो गए ब्लास्ट में. तो ये सब चीजें मिला के ट्रॉमा हो जाते हैं, जिसको सेल शॉक बोला जाता है. बहुत सारे सोल्जर्स इसके कारण उस समय मैड हो गए थे, बहुत जन का डेथ हो गया था. वेरी हॉरिबल ट्रॉमा. तो सेल शॉक इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस हिस्टीरिया और सिजोफ्रेनिया जो हम बता रहे हैं. तो बहुत अच्छा एग्जांपल है सेल शॉक. तो फ्रॉइड ने इसका एक एग्जांपल दिया है टू डिफाइन और टू एक्सप्लेन ट्रॉमा. नाउ देयर इज अनदर टर्म, रिपीटेशन कंपल्शन. ट्रॉमा थ्योरी में अगर हम बात करें तो रिपीटेशन कंपल्शन एक टर्म. व्हाट डज दैट मीन? It refers to the anxieties that are replayed over and over again. Each repetition an attempt to master the traumatic material that has pierced protective filters, which means that it is a kind of compulsion of repetition. Now compulsion क्यों? मतलब ये जो भी पेशेंट्स है, मान लो जो भी हिस्टेरिक पेशेंट है या फिर जो ट्रॉमेटिक पेशेंट है, जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, they are helpless in this matter. Their mind automatically imagines those things and वो चीज वो बोलने लगते. तो इट इज अ काइंड ऑफ कंपल्शन. मतलब अगर उसके मन में ये चीज आ जाए तो ये बहुत जल्द नहीं हटता है एंड ये रिपीट होते. तो कुछ एंजाइटीज, कुछ पर्टिकुलर सीन्स, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ये रिप्ले होते रहते. मतलब कुछ टाइम वो ठीक रहा, उसके बाद फिर से उनका वो चीज स्टार्ट हो. So replayed over and over again, each repetition an attempt to master the traumatic material that has pierced protective filters. मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट, ओरिजिनल जो इंसिडेंट है, वो फिल्टर होते होते जितने बार वो रिपीट होते हैं उतने बार कुछ नए नए चीजें उसके साथ जोड़ते जाते, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू अ कंप्लीटली इम्पॉसिबल स्टोरी. कंप्लीट बैड जब पर्सन हो जाए, है ना. तो एंजाइटीज आर रीप्लेड. रीप्लेड मतलब वो बार बार रिपीट होते रहते हैं उसकी आंखों के सामने, एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी इजीली फॉरगॉटन. उसके माइंड में वो चीज बैठ जाती है तो कितना भी कोशिश करो वो नहीं निकलता. एंड जब वो चीज रिपीट करते रहते हैं, रिपीटेशन के साथ साथ क्या होता है, इट फिल्टर्स. मतलब टू मास्टर द ट्रॉमेटिक मटेरियल मींस some stories, some new elements are added to that story, and ultimately वो बाहर आते.
एक इम्पॉसिबल के कारण, ठीक है। तो दैट इज रिपीटेशन कंपल्शन। एंड इसका और एक रीजन बताया गया है, फ्रॉइड और ब्रूअर बाकी थ्योरिस्ट ने भी बताया है कि मीनिंगलेस फ्रैगमेंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड can also be interpreted as significant memories that was previously incomprehensible. मीनिंगलेस फ्रैगमेंट्स, चाइल्डहुड मेमोरीज, जो कि मतलब मान लो बहुत ही पुराना कुछ चीज है, बहुत ही माइन्यूट कुछ चीज है, आपको अब तक याद नहीं था, अचानक याद आ गया, एंड दैट कैन ऑल्सो बी अ सिग्निफिकेंट मेमोरी इन टर्म्स ऑफ ट्रॉमा दैट वाज प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, बट अभी आप उसको एक न्यू लॉजिक देके उसको एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो दैट इज मीनिंगलेस फ्रैगमेंट, मीनिंगलेस फ्रैगमेंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। तो ये चीज होता है, अगर आप ऐसा कोई पेशेंट देखे हो, वो अपने घर में हो या आसपास में हो, तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। एक्चुअली माय ग्रैंडमदर इज सफरिंग ड्यू टू दिस सिजोफ्रेनिया एंड ऑल दिस, तो इसलिए हम ये चीज को बहुत अच्छे से समझ, जब हम ये चीज पढ़ रहे थे तो हम ग्रैंडमदर की याद कर रहे थे। ग्रैंडमदर अभी है, तो मतलब वो ना अचानक अचानक कुछ अजीब अजीब चीजें बताते हैं, सिजोफ्रेनिया, जिसका कोई लॉजिक नहीं। कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी उसके मीनिंगलेस चाइल्डहुड कुछ चीजें, जब वो बहुत छोटे थे तो वो खुद मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि वो बच्चा बन गए हैं, एंड शी रिकॉल्स ऑल दोज, हर चाइल्डहुड मेमोरीज, मतलब एकदम बचपन में। और कभी कभी वो मेरे ग्रैंडफादर से बात करते हैं जो अभी जिंदा नहीं है, तो हम लोग पहले डर जाते थे कि भाई क्या कर रहे हैं, तो फिर डॉक्टर बोले कि शी इज अ सिजोफ्रेनिक पेशेंट, इनका तो कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बट यस कुछ ऐसा मेडिसिन है जिससे ये रिपीटेशन को कम करने की काम हम लोग कर सकते। तो अभी मेडिसिन लेते हुए कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी जैसे वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि पूरा मैड पर्सन। तो वो अजीब अजीब चीजें देखते रहते हैं कि कोई एक छोटा बच्चा जो मतलब विंडो में बैठा है, कभी 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 ऐसे बोलता है कि विंडो में बैठा है कोई छोटा बच्चा, देखो एक बच्चा जिसका कोई हाथ पैर नहीं है वो हमसे बात कर रहे हैं, तो वेरी हॉरिबल थिंग्स। तो दिस इज रिपीटेशन कंपल्शन, कि उसके दिमाग में ये चीज, एंड वो ऐसे बता रहे कि भाई इधर ही तो बैठा है, हम लोग नहीं देख पा रहे बिकॉज दैट डजंट एग्जिस्ट, बट हर ब्रेन इज प्रोसेसिंग इट इन दैट वे दैट इट कैनॉट बी असेस्ड थ्रू नॉर्मल मेंटल प्रोसेस। तो दिस इज रिपीटेशन कंपल्सन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रॉमा स्टडीज का। नाउ कैथी कैरुथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताए कि द मोस्ट डायरेक्ट सीइंग ऑफ वायलेंट इवेंट may occur as an absolute inability to know it, and trauma can also be linked to what remains unknown to our actions and language. This is the most important thing, कैथी कैरुथ ये चीज बता रहे हैं कि the most direct seeing of violent event, you are seeing a very violent war before your eyes, that can result into trauma, हो सकता है, but it may occur as an absolute inability to know it, हो सकता है कि कोई भी चीज आप मतलब जो देख रहे हो उसका रीजन आपको नहीं पता है, you are just seeing a fragment of the incident, and your trauma may result into what remains unknown, ठीक है। मान लो आपने एक्सीडेंट नहीं देखा, आपने एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद आप जा रहे हो, तो जाते टाइम आपने नोटिस किया कि जो डेड बॉडी वहां पे है रोड पे, उसका कंडीशन बहुत ही खराब है, मतलब वो देखने के लायक नहीं, इट्स वेरी ग्रूसम सी। मिस्टेकनली यू हैव सीन दैट डेड बॉडी, यू डिडंट नो द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है, एंड वो चीज आपके मन में बैठ गया है, तो जब भी आपके आंख को बंद कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो डेड बॉडी आपके साथ बात कर, एंड आप जानने की कोशिश करो कि भाई ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो ट्रॉमा कैन ऑल्सो बी रिजल्टेड इनटू दैट, मतलब ये भी आपके लिए ट्रॉमा हो सकता है कि जब तक आप उसके कारण ना जान पाओ तब तक वो इवेंट आपके अंदर रहे, कि आप उस डेड बॉडी को आप हमेशा देख रहे हो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो कैरोथ इज सेइंग द सेम थिंग, दैट ट्रॉमा कैन ऑल्सो बी लिंक्ड टू व्हाट रिमेन्स अननोन। I have watched a violent scene, but I didn't know the cause. Maybe to know the cause can be a cure of my trauma. अगर हमको कोई कारण बता दे, उसका एक प्रूफ हमको मिल जाए, हो सकता है कि वो सीन मेरे दिमाग से चले। और अगर हम कारण नहीं जान पाते हैं, तो my overactive brain, over imaginative brain starts linking with
start linking the incident with some other objects एंड वो एक इम्पॉसिबल स्टोरी बन जाए, है ना? तो कैथे कैरुत ये चीज बता रहे। नाउ ट्रॉमा कैन ऑल्सो बी कल्चरल। अब ट्रॉमा हम दो तरीके का ट्रॉमा के अभी जो हम बात कर रहे थे शुरुआत से लेके, दैट इज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा। ठीक है, मतलब आपके माइंड में कोई भी एक इंसिडेंट का डीप इम्पैक्ट रह गया है, वो ट्रॉमा में लीड कर। अनदर थिंग कैन बी कल्चरल ट्रॉमा। ये तो मान लो कि पर्सन टू पर्सन है, मतलब इंडिविजुअल ट्रॉमा, कि जिसके मन में ये चीज है उसका है। लेकिन जैसे सिजोफ्रेनिया बोलो, हिस्टेरिया बोलो, ये जो पर्सन सफर करे उसी के अंदर है, ठीक है। बट कल्चरल ट्रॉमा, it is a different thing. It refers to some social process when a group experience horrible event, a group of people। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हॉलोकॉस्ट, द execution of the Jews। That is also a trauma, but that is a cultural trauma, because it is not limited to one particular Jew, but each and every Jewish people ने ये चीज को एक्सपीरियंस किया था, हॉलोकॉस्ट। ठीक है, अच्छा, और कोई मान लो कि कोई मास जेनोसाइड हो रहा है, मास जेनोसाइड, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी कल्चरल ट्रॉमा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक जगह में टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो ऑल दोस पीपल दे कैन एक्सपीरियंस दैट कल्चरल ट्रॉमा। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजियन के ऊपर मान लो हमला हो रहा है, ठीक है, मास जेनोसाइड चल रहा है, so that can result into cultural trauma। So it is not limited to some individual, but a particular group of society can be affected with that horrible event। शेल शॉक, हाँ, सेल शॉक को भी आप इन इन वन सेंस ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल भी है, और एक तरीके से आप इसको कल्चरल मान सकते हो कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट। बट हर एक सोल्जर को नहीं होता है, मैक्सिमम सोल्जर को ये होता है। तो ये दोनों ही तरफ से आप देख सकते हो कि एज इंडिविजुअल ट्रॉमा, मतलब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एंड कल्चरल ट्रॉमा। लेकिन ये हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड, या कोई भी मतलब वॉर के बाद वाला जो भी सिचुएशन होता है, कोई भी कंट्री के साथ जो वॉर होता है, उसके बाद वाला जो सिचुएशन है, जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो वो सब चीजें कल्चरल ट्रॉमा के अंदर आ जाती है। तो ट्रॉमा स्टडीज, अब बात है कि ट्रॉमा स्टडीज हम लोग जितने भी पढ़े, टू सम अप, व्हाट डज इट एक्सप्लोर? इफ वी टॉक अबाउट इन लिटरेचर, देन व्हाट डज इट एक्सप्लोर? मान लो कोई भी आप टेक्स्ट को आप एनालाइज कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रॉमा स्टडीज, ट्रॉमा थ्योरी, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आई? हाउ आइडेंटिटी एंड मेमोरी आर अफेक्टेड बाय ट्रॉमा, ठीक है, how the individual's conception of external world and social relationships are defined by trauma, because a traumatic patient uh, can interact with the society in a different way, ठीक है, उसका इंटरेक्शन अलग होगा। हाउ ट्रॉमा इज शेप्ड बाय लैंग्वेज, कैसे आप उस ट्रॉमा को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द इनसेन पीपल, मैड पीपल, कि लैंग्वेज के थ्रू, मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज, उसके थ्रू आप कैसे ट्रॉमा को एक्सप्रेस कर। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी कोऑर्डिनेटेड इनटू ट्रॉमा स्टडीज। इट्स अ वेरी ब्रॉड थ्योरी। आई हैवंट आल्सो रेड द कंप्लीट थ्योरी, बट हम जितने भी पढ़े हैं, हमको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया है। बट आई एम आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न specifically of this book of Kathy Carruth, Unclaimed Experiences। तो मतलब I wish I read that book, or at least read a brief summary of that book। तो हम भी अभी पढ़ रहे हैं ट्रॉमा स्टडीज के बारे में, और भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन पता चले तो हम जरूर बताएंगे इस वीडियो के थ्रू। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रॉमा स्टडीज के जितने भी थ्योरिस्ट है, फ्रॉइड को तो हम चलो हमने पढ़ लिया है, ब्रूअर एंड बाकी जितने भी थ्योरिस्ट है, उनके ऊपर कोई अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन हमको मिले तो हम अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल हमको यही चीज पता चला है अबाउट ट्रॉमा स्टडी, सो आई थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इट टू यू। इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड रिसर्च इज ऑल्सो गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ट्रॉमा स्टडीज के थ्रू आप मान लो जितने भी वॉर नॉवेल्स है, वॉर पोएट्री है, इसको आप एनालाइज कर सकते हो थ्रू ट्रॉमा ट्रॉमा स्टडीज। एंड ऑल्सो दोज जो भी मतलब हम लोग जो डायस्पोरा थ्योरी पढ़ रहे थे, तो डायस्पोरिक वर्क,
जितने भी है उसमें भी कुछ कुछ चीज में आपको ट्रॉमा आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हाँ, फाइनल सॉल्यूशन में एक ट्रॉमा स्टडीज एप्लीकेबल हो सकता है, इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ जावेद्स बिहेवियर। तो हो सकता है बॉबी एंड जावेद्स बिहेवियर, उसके साथ हार्दिका दक्षा का जो भी मेंटल सेटअप है वो 1947 के बारे में सोच रहा है। तो नॉट वेरी डायरेक्टली बट कुछ केसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रॉमा स्टडीज को। तो इसको आप जरूर एक्सप्लोर करना। आपके पास जो भी थ्योरी बुक है, अगर वो अपडेटेड बुक है तो उसमें ट्रॉमा स्टडीज होंगे, पुराने वाले बुक्स में नहीं है। तो जैसे हम भी इंटरनेट से ही पढ़े हैं इसको। तो very interesting area, and you can those of you who are thinking to do research, if this is your specific area of study, then you can definitely look at trauma studies. I think it will be a very interesting research topic also. Okay, so that is the end of today's video. Thank you all. Bye bye. See you soon again in some other